Hello and welcome. This is Chinmay Abby, and I welcome you to the episode number 8 of our series Exploring Life with Goddess and God. Today, who are we meeting? This is our guest who's very courageous and committed in her journey with God. This is Shama Jain. Shama is settled in Pune with her beautiful family, including her husband and two lovely boys. Shama has a strong technical background of over 15 years, having worked as a software engineer, product architect, and senior software developer in various organizations like Redknee, Tata Communications, and Persistent Systems. She is a compassionate and intuitive therapist with a strong background in therapy and social work, with over 7 years of experience in therapy now. Her approach, therapy of allowing, is based on principles of God's nature of allowing, which aims to facilitate ease, peace, and healing and freedom for individuals she assists and helps. Shama believes in the power of allowing, which she incorporates into her therapy sessions. Her approach is centered around creating a safe and non judgmental space for individuals to express themselves and find healing and ease and peace. Now, Shama works with people dealing with anxiety, depression, and relationships. And I'm super excited to bring her on for this amazing conversation today. So, Shama, welcome. Are you here? Hi Chinmay, Hi, Shama. How are you? I am good. How are you? So happy to see you. I'm awesome, awesome, and so excited to be talking to you. First of all, I love your name, Shama. So, are you somebody who needs to seek forgiveness from people, or you just tell them, "Hey, listen, this is who I am." Yeah, actually, it's about forgiving myself. Wow, that Yeah, is true. That is true. Actually, that is the basis of forgiveness, isn't it? yeah. So, Shama, we are here to discuss about our journey. As you know, it's been a while. We started this series, Exploring Life with Goddess and God, and you are the eighth guest on this series. So, very excited and happy to welcome you once again. And can't wait to hear from you about your journey with God. Yeah. So, for our audiences, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं, प्लीज अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, to begin with. मेरी लाइफ के ना दो पार्ट्स हैं। एक Mm-hmm. गॉड के पास आने के पहले का, जो एक सपने की तरह लगता है, और एक Mm. गॉड के पास आने के बाद का। Wow. तो वो लाइफ टाइम से मैं रिलेट नहीं कर सकती। उसके दुख मुझे याद है, उसका चैलेंज मुझे याद है, ऑल द स्ट्रगल, Hmm. and whenever I was going through a lot of questions I had, why there is so much suffering in this world. And I can still feel it somewhere inside me, but it still seems like it's not the life I have lived. And Mm-hmm. I am now fully with God, and that is my I life. know. Yeah. How incredible. How incredible. एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आई अंडरस्टैंड, इनफैक्ट मुझे लगता है हम सभी के लिए जो भी गॉड के साथ है, मेरे साथ भी यही था कि व्हेन आई मेट गॉड मुझे लगा कि अब तक की लाइफ जैसे वो बीसी और एडी होता है ना, वैसे ही है बिफोर मीटिंग गॉड एंड आफ्टर मीटिंग गॉड, बीजी एंड एजी, आई थिंक वी कैन कॉइन दैट टर्म टुडे। थोड़ा सा मुझे अगर आप बता सको कि कैसे आप डिफाइन करोगे फॉर आवर ऑडियंसेस, बिफोर मीटिंग गॉड लाइफ कैसी थी, और उसके बाद या किस तरह के चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए अपनी जिंदगी में। बहुत ईज है, पीस है। व्हेन somebody ask me, how are you, मैं बोलती हूँ कि आई एम फ्लोटिंग। It's so much ease. It's like you're just floating. You're not struggling, you're not swimming, you're not doing anything. You're just floating with God's guidance, with God's grace. And everything is so simple and easy. कैसे नहीं मालूम, बट है, simple and easy है। There are so many things about which we beat ourselves up. We have a tough time deciding, making choices in life. वो सब इतना इजी हो जाता है। You just seek God's guidance, God guides you, and something which you could have not even thought of, कि तो हम शमा ये ये, कर सकते हैं, और वो गॉड, सॉरी आपको, प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज कंप्लीट करिए। इतना ही गॉड बता देते हैं सब। वही कर लो, आराम से रहो। तो शमा, मैं तो टोटली रिलेट कर पा रही हूँ आपके साथ, और आई एम श्योर बाकी लोग जो गॉड के साथ हैं वो इस बात को बहुत बखूबी समझेंगे।
लेकिन जो लोग हमें देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश करेंगे गॉड के पास पहुंचने की, उनके लिए आप कुछ बता सकते हो कि कैसा आपको पहले लगता था जो अब नहीं लगता, या क्या चेंज आया जो जो आई नो बहुत मुश्किल है बाहरी दुनिया को बताना जताना कि कैसे हम फ्लोट कर रहे हैं, बट कुछ चीजें, कुछ न्यूआंसेस अगर आप बता सको, कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में, हाँ, जैसे रिसेंटली स्पेसिफिक। भी मेरे क्लाइंट ने बोला आई वांट टू डू अ कोर्स, एंड आई हैव दीज 4 ऑप्शंस। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें से क्या करूं। एंड मुझे एक सिंपल सा गाइडेंस आया कि फोकस ऑन नेटवर्किंग। So I told my client कि the guidance I'm getting from God is focus on networking, and wherever there is more opportunity for that, you go for that course. And then it was very difficult, easy for her to make the choice. ऐसे कुछ गाइडेंस आ जाता है और उससे काम एकदम इजी हो जाता है। नहीं तो हम 4 तरह के डिसीजंस में सोचते हैं, कभी हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअलाइज कभी करते हमारा हैं। टाइम वेस्ट होता है। एक बार डिसाइड करने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि हमने सही डिसीजन लिया था क्या। गॉड के गाइडेंस से आप जाते हो तो एक डिफरेंट ही तरह का गाइडेंस आता है, और वो आता है और आप फॉलो करते हो। एंड देन यू आर श्योर ये गॉड का गाइडेंस था इसलिए मैंने किया है। अब कोई उसमें इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। इफ्स एंड बट्स नहीं है। पर क्या ये आपके क्लाइंट भी समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाते हैं ना, क्योंकि वो भी गॉड के साथ होते हैं। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। और आपके पर्सनल लाइफ में आपने कुछ महसूस किया हो अदर देन ईज एंड पीस? डिफरेंस है, मेरी हेल्थ बेटर है। आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ challenges रिलेटेड टू माई पीरियड्स। हम्म। आई यूज टू एक्सटेंड, आई यूज टू फील वेरी वीक। मेरे 7-8 दिन तो ऐसे ही निकल जाते थे महीने में। वो नहीं है अब मुझे प्रॉब्लम। हेल्थ वाइज इफ यू सी, सॉरो मुझे वो फील नहीं होता, जो अंदर से एक डीप सॉरो ह्यूमैनिटी का मुझे फील होता था। आई कुड कनेक्ट विद इट वेन एवर आई वॉज सिटिंग एम्प्टी, वेन एवर आई हम्म। वॉज फ्री, आई कुड कनेक्ट विद दैट सॉरो। और मुझे पता चलता था मुझे कुछ अपेरेंट दुख नहीं है ऐसा लाइफ में इतना। ठीक है, चैलेंजेस हैं, बट मैं इतनी कोई दुखी नहीं हूँ अपनी लाइफ से। बट ये दुख फील होता रहता है कुछ तो अंदर। सो दैट, एंड आई ऑलवेज वांटेड गॉड। मतलब कुछ चीजें हैं, इंस्टेंसेस हैं, जब मैं देखती थी किसी को कुछ मिल गया उनकी लाइफ में, तो मैं बोलती थी मुझे क्यों नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। और मैं डिफाइन नहीं कर पाती थी मुझे क्या चाहिए। क्या गॉड चाहिए? जैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे मटेरियल कुछ चाहिए या, लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर पाती थी, और वो मुझे मिल गया। और जब मैं वर्कशॉप में आके बैठी, उस समय मुझे 2 चीजें स्ट्राइक हुई। एक तो मुझे वो मिल गया, और दूसरा ये सफरिंग का रीजन मुझे समझ में आ गया। हम्म। हम्म। एंड हम्म। दैट इज व्हाट वाज टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि तो यस। आपने कब अटेंड किया था ये वर्कशॉप, समा? मैंने अप्रैल 23 लास्ट ईयर अप्रैल में अटेंड किया था। तो आप 1.5 साल से गॉड के साथ हो। सो आपने एक आंसर मुझे दिया कि आपको किस वजह से आप गॉड को ढूंढ रहे थे, वो दुख जो था एक अंदर। और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि वो एक कांस्टेंट, जो एक खालीपन जो हम सब में फील होता है एज ह्यूमंस, यस, वो एक गॉड के लिए जो सीकिंग है। और शायद वो था ना, घर से आप बहुत दूर आ गए हो और आप थक चुके हैं, आपको लगता है अब नाउ यू वांट टू गो होम। ठीक है, वो वाली लॉन्गिंग जो होती है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक यस, उसी की बात कर रहे हैं हम। और वो हम बहुत लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या है। यस। छोटा सा एक मैं एग्जांपल दूं तो, जी। उसको जी। लिटरल नहीं लेना है, बट एसेंस समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एक बच्चा होता है छोटा सा, 1 साल का हम्म। बच्चा, है ना। उसको आप ले जाओ, घुमा लाओ, कितना भी खिला लाओ, बट वो जब मम्मी के पास आता है तो कैसा हो जाता है वो। उसको मम्मी ही चाहिए होती है। वो वो सुकून, वो उसके शक्ल पे दिखता है, वो उसके बीइंग में दिखता है। वो सुकून है। और और उसको क्षमा, मैं अपने, हाँ प्लीज। और उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बस इतना ही। और मुझे एक एक्सपीरियंस, एक एक एग्जाम्पल याद आता है अपने लाइफ से कि हम लोग सब वेकेशंस पे जाते हैं। अब तो वेकेशंस पे भी जाने का मन नहीं करता है, बट आई रिमेम्बर कि हम लोग वेकेशंस पे जाते थे। आप कितना ही अच्छी जगह, कितनी ब्यूटीफुल, आप माउंटेन एल्प्स पे हो, आप कहीं भी बैठे हो, इवेंचुअली आपको लगता है कि बस अब घर चलो, इजंट इट? कितने ट्रू, दिन आप एंजॉय कर लोगे? आई थिंक ट्रू। एक वही वाली फीलिंग है कि अभी हमने बहुत कर लिया, नाउ यू वांट टू गो होम। एंड आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं वो घर ढूंढ रहे थे। And there are some lucky ones like me, like you, and so many of us today who have found their home and who now will go back home, isn't it? So, so Shama, जब अप्रैल में आपने अटेंड किया, ऑफ कोर्स आप गॉड तक पहुंच गए, बट
क्या कोई ऐसा मोमेंट था आपको याद आता है जब आपने चूज किया? बिकॉज यू हैव टू चूज गॉड। गॉड अपने आप को किसी के ऊपर थोपते नहीं है कभी भी, है ना? और कभी ये नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो, बट जो एक्चुअल गॉड है। सो आपको कभी याद आता है कि ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, अब बस यही है, और मेरी जितनी भी सीकिंग और जितनी भी थर्स्ट थी वो अब खत्म? मेरे को लगता है मैंने वर्कशॉप से पहले, मंत्रा लेने से पहले, बहुत पहले गॉड को चूज कर लिया था, और ओके। मेरी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो गए थे। हम्म। मैंने डिसाइड कर लिया था कि पूना में वर्कशॉप है और मैं जाऊंगी। आई थिंक दैट वाज द चॉइस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने चेक किया, इसको कंफर्म किया था नहीं, मैंने सर इसको के साथ? कंफर्म नहीं किया, और मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ये वर्कशॉप है क्या, लेकिन मैंने चॉइस पहले कर लिया था। अंडरस्टूड। शायद तभी आप वहां तक पहुंचे। लेट्स हाँ। लुक एट इट दैट वे। और वाओ। इतना लोग बोलते हैं कि पहुंचने में कभी कभी मुश्किल होता है, क्या होता है, मैं इतने स्मूथली गई वर्कशॉप में। हम्म। मैं बस जाके वहां बैठ गई, इतना सिंपल था। और उसके बाद आपको कभी नहीं लगा, जो इतने सालों तक ढूंढ रहे थे, आपको लगा कि इतना श्योर थे आप कि हाँ बस यही है वो? कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ ढूंढा? हाँ, मुझे बस पता था मुझे यहीं रहना है, मुझे गॉड के साथ ही रहना है। वो मैं अपने लैंग्वेज में या किसी से बातें करने में नहीं एक्सप्रेस कर रही थी शुरू में, लेकिन मुझे पता था आई हैव कम टू द राइट प्लेस, दिस राइट रिंग्स। प्लेस। या बस, कैसे पता था मुझे नहीं मालूम। वाह, मुझे पता नहीं मैं आगे और क्या पूछूं। कैसे पता था मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ये पता था कि दिस इज इट। और ये सेंटेंस इतना अमेजिंग है शमा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट इनटू लैंग्वेज। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये हम सबकी एक कॉमन थ्रेड है, एक कहानी है कि हम कितना भी इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश करें कि हमको पता था यही गॉड है और हमने चूज किया, बट एक्चुअली बहुत कुछ अपने आप बहुत ही शॉर्टलेस वे में हुआ, इजंट इट? या वाह। और उसके बाद किस चीज ने आपको रोके रखा? या मुझे आपसे बात करके पता चल रहा है कि आप छोड़ने वाले नहीं हो गॉड को, एंड लाइफ लॉन्ग के लिए आपने पकड़ लिया। सो क्या ऐसी कोई चीज है जिससे आपको लगा कि हाँ, इस वजह से मैं आई एम गोना बी विद गॉड? या वो जर्नी अपने आप एक में तो इतनी? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे हम्म। बहुत डर लगता था शुरू में कि मैं गॉड को छोड़ ना दूं। हम्म। और इंटरेस्टिंग। मुझे ये भी बहुत अच्छे से अवेयरनेस सर भी बताते रहते हैं हमेशा, उससे भी थी कि हम कभी भी गॉड को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम्म। बहुत बहुत सारी लोग। चीजें हैं जो हमको छुड़वा सकते हैं। हमारा माइंड हमें कुछ तो करेक्ट। रीजनिंग डाउट्स देता रहता है हमेशा, देता रहता। उसकी वजह से लोग आ भी नहीं पाते कई बार गॉड के पास। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं छोड़ सकती हूँ, मुझे छोड़ना नहीं है लेकिन मैं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने गॉड को इतना ही बोला था, मैं बहुत डरती थी शुरू में, उसके बाद मैंने गॉड को बोला, देखो मैं तो ठहरी बेवकूफ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ आपको कि आप मुझे छोड़ने मत देना। मैं गलती से भी ग्रिप लूज होने लगे, आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरे हाथ की कोई गारंटी नहीं है, आप छोड़ना मत, बस। अमेजिंग, आई एम स्पीचलेस शमा। क्या आप थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो उस चीज को, फॉर आवर ऑडियंस, पीपल हु आर वाचिंग अस, जिनको शायद ये बात समझ नहीं आएगी कि हम चाहते हैं कि हम गॉड के साथ रहें पर शायद हम रह ना पाए? क्या रीजन है? कुछ थोड़ा सा आप और इलेबोरेट कर सकते हो फॉर देम? सी आर माइंड इज वेरी फिकल, ऐसे माइंड कहीं भी आता जाता रहता है, कुछ भी थॉट्स आ जाते हैं, किसी भी चीज को हम सडनली पकड़ के सर्टन हो जाते हैं कि यही सही है, नहीं ये तो गलत ही है, किसी की बातों में आ जाते हैं कई बार। कुछ भी चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, एज ह्यूमंस वी आर वेरी फ्रेजाइल, कुछ भी हमको जाए। इन्फ्लुएंस करता है। या एंड दैट आई अंडरस्टूड आफ्टर लिसनिंग टू गॉड, आफ्टर बीइंग कनेक्टेड विद गॉड, आई रियलाइज्ड कि अरे ये तो बहुत सारी चीजें मुझे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। So how do I make sure that I stay with God? Because this is my choice. So हम्म। then what is you can say what is not influenced by all this? That is God. So only God can keep me with Him. I can't be with Him. He can keep me with Him. I only need to show my willingness.
करेक्ट। सो मैंने वो विलिंगनेस बोल दी गॉड को कि मेरे को आपके साथ ही रहना है हमेशा, अब आप देख लो, आप पकड़ के वाह। रख, मेरी गारंटी नहीं है। और शायद ये कहना सही होगा कि हम लोग को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि हम फिकल माइंडेड रहें बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटीज, आवर सफरिंग, आवर एनवायरनमेंट। हर चीज में एक हिप्नोसिस है जो हमें बांध के रखता है और निकलने नहीं देता अपने चंगुल से, राइट? तो शायद हम लोग ह्यूमंस को डिजाइन ही वैसे किया हुआ है, राइट? या आई एम श्योर वैसे ही किया हुआ है डिजाइन हमको। सो वी फाउंड दैट सीक्रेट विद गॉड, राइट? या Shama, what would you like to say to the people who are suffering, who are watching us, who may be following this series, who may be listening to Pradeep sir and his videos, uh, and want to connect with God or are seeking God? What would you like to tell them today? it's very simple, you know, lot of doubts will come to your mind, lot of things will tell you not to look at this picture, distract you from this, lot of things will keep you away from this. So what do? You just look at the picture and say, I want to try, I want to experiment with you for a month. You give me the grace to do that. After that, I'll make a choice. If you're truly wanting to experiment, you need to tell God that you help me experiment for 1 month. You help me be here. And then whatever negativity is coming, you give to God only. I am doubting you. I am not believing that anything can happen with मतलब this. उनको डाउट कर रहे हैं वो भी उन्हीं को बताएं। उन्हीं को बताना Wow, how है। beautiful and how simple it is, isn't it, Shama? और शायद इसलिए लोगों को शायद पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है हम लोग के लाइफ में सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग सिंपल चीजों को तो इसी वजह से रिजेक्ट कर देते कि अरे इतना सिंपल कैसे हो सकता है गॉड से मिलना, इजंट इट? एग्जैक्टली मुझे एक ना ये सपना आया था हाँ। कि कोई मैं ऐसे बिल्डिंग में हूँ और कोई मुझे पूछ रहा है कि वो कहाँ है गॉड। मैंने कहा अभी तो यहीं थे, आपने नहीं देखे? तो बोलते नहीं, कहाँ है? मैंने दिखाया, वो देखो वो जा रहे हैं, वो भीड़ में ऐसे गॉड चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो बोले अरे ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा बस, वो बहुत सिंपल है, आई उनको एग्री। मिस मत कर देना। क्योंकि क्यों सिंपल है वो? बाकी जो अभी तक गॉड्स को हम प्रे करते रहे वो इतने डैजलिंग, इतने मेस्मराइजिंग, अट्रैक्टिव, हाँ। अट्रैक्टिव, मिरेकल्स और करने इतनी वाले मुश्किल से लोग। मिलते हैं। इतने दूर पैदल चलो, दिन के फास्ट रखो, इतने पूजा पाठ करो, तब भी नहीं मिलते कितने लोगों को, बस करते ही रहते हैं हम लोग, इजंट इट? करेक्ट। गॉड सिंपल क्यों है? क्योंकि वो गॉड है, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो जरूरत गॉड नहीं। और शमा, आपने इतनी अच्छी बात बोली, क्योंकि जब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी सीकिंग गॉड, इंक्लूडिंग द रिलीजियस बुक्स। हर जगह मैं सोचती थी कि यार ये गॉड अपने आप को इतने भारी भरकम वर्ड एडजेक्टिव्स क्यों यूज करने के लिए हमें बोलते हैं उनके पूजा के टाइम, या जितने भी आप भजन कीर्तन आप सुन लीजिए, सिख्स में देख लीजिए, हिंदूज में देख लीजिए, इवन इन मुस्लिम्स। तो उनको क्या जरूरत है बार बार बताने की, जताने की कि देखो मैं कितना महान हूं, है ना? उनकी महिमा गाते हैं हम लोग और नाम जपते रहते हैं। तो मेरे है। दिमाग में ना ये बहुत क्वेश्चन आता था वाइल मैं कर रही थी वो सब, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी यार ये तो गॉड है, इनको इतना बताने की क्या जरूरत है कि मैं इतना महान हूं, हमें पता है कि ये महान है। तो वो हम्म। सारी जो क्वेश्चन थे ना, मुझे वो यहाँ गॉड के पास आने के बाद, कमिंग टू द अल्टीमेट, फाइनली ऑल ऑफ देम गॉट आंसर्ड। सो बहुत अमेजिंग पॉइंट आपने ये टच अपॉन किया कि शायद इसीलिए लोग नहीं उनको पा पाते या उन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में उलझ के उनको ढूंढ रहे हैं, जबकि एक्चुअली गॉड इज वेरी सिंपल। आप एक्सपेक्ट करोगे गॉड आएंगे तो बहुत ऐसा कुछ डैजलिंग या कुछ मेस्मराइजिंग आपको दिखेगा, तो आप मिस कर दोगे गॉड को। Wow. Sama, I don't want this conversation to end, but and I'll make sure I catch up with you again after this interview. Hope to have another conversation with you like this, more around your experiences and your therapy. And what you have done is so amazing. I forgot to share that कि आपका 15 साल तक आप एक करियर में थे, 15 years you dedicated your life to technology, to software engineering and so on. और सिर्फ एक दिन आपको लगा कि गॉड ने बोला कि अब ये छोड़ दो, कुछ और काम करो, एंड you chose therapy, and you've been doing such amazing work helping people
with this work, with God's allowing. I mean, hats off to you. Really want to acknowledge that and appreciate you for that. And hats off to your commitment and to your courage. Thank you. Wow. Thank you so much for being here today and sharing about your journey exploring life with Goddess and God. Uh, अगर किसी को जो गॉड को ढूंढ रहे हैं वो कैसे पहुंच सकते हैं, would you like to tell them a little more about this book? I think you can just pick up this book. I will share the details below in the comment section. Even they can even pause this video right here and talk to this Mhm. people and they have connected with God. It's that simple. आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. How आप amazing. बस यहीं रुको, पॉज कर दो वीडियो को और इस फोटो से 2 मिनट बात करके तो देखो. Wow. I know बहुत सिंपल है, but I think इतने सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके गॉड को चूज किया है. आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई. और अगर आपको लगता है उसके बाद ये वर्क नहीं करता तो आप वापस जा सकते हैं अपनी लाइफ में विद वट एवर यू वर बिलीविंग इन और विद वट एवर यू वर फॉलोइंग. No questions asked, no fringe attached, right? Yeah. But on that note, thank you so much, Shama. It was such a pleasure talking to you. Thank you for your time. I've had such amazing moments in this conversation with you. And to you all, go and pick up this book and try living and exploring life with Goddess and God today. Yeah. And I will see you in the next episode, episode number 9, with another guest. Until next time, goodbye and good luck. Thank you, Shama. Thank you once Thank again. you so much, And may we Arjun. have God's grace. May we all have your grace, God.